everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 15 July 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we head on to the important articles, आज का जो डेट है 15th July, इसके हम क्या मनाते हैं? We celebrate World Youth Skills Day. Okay, so it's every year it's celebrated on 5th July and why it's important this year is because 10 साल पूरे हुए हैं when it was first celebrated or recognized. So it was recognized in the United Nations General Assembly 2014 में और 15 से हमने स्टार्ट किया इसको सेलिब्रेट करना. So इस बार का जो थीम है it is with regard to youth empowerment through artificial intelligence and digital skills. Okay, this is the theme of this year. तो ये आपको पता होना चाहिए. Let's now proceed with the articles of the day. So the first article that we're discussing is with regard to inflation. Now in this video we're going to be understanding what is inflation, inflation को measure कैसे करते हैं, and we're going to see important indices and everything who publishes it, ये सब हम देखते हैं. Now before that let's just see what is the context of the article. Article कहता है कि inflation की अगर हम बात करें it has continued to cool, मतलब inflation जो है हम देख रहे हैं ये कम हो रहा है और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कैसे ये कम हो रहा है. Now इसका रीजन क्या है ये हम देखते हैं कि there is one thing is food prices and crude rates. जो क्रूड ऑयल के रेट्स हैं ये कम हुए हैं एज वेल एज फूड के प्राइजेस. सो हम देखते हैं रिटेल इन्फ्लेशन इज एट अ 77 month लो एज वेल एज द होलसेल इन्फ्लेशन इज अगेन आफ्टर 20 months it has dropped because of the crude oil prices. Now what is this retail inflation, what is this wholesale inflation जो मैं कह रही हूँ, that we're going to be seeing in today's time. Okay, now before that inflation क्या है, let's have a quick understanding. Inflation जो है as we know it is mainly the rise of prices. तो यहाँ पे the rate at which the cost of goods and services ये जब increase होता है given a given period of time इसको हम बोलते हैं inflation. तो mainly एक पेन है, इस पेन का कॉस्ट है 100 रुपया, इन द कमिंग टाइम ये 110 होगा. Okay, so that is the inflation that we talk about. Now inflation क्यों होता है? There are many reasons. First thing is the demand or the pull factors. इसके कारण मतलब लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं तो लोग डिमांड कर रहे हैं. So that is the reason. So many people want the pen. तो इसीलिए जो सेलर है इसने रेट्स इंक्रीज कर लिए because बहुत लोगों को चाहिए और पेन तो लिमिटेड है. The second case is the cost push factor. Now यहाँ पे because जो raw materials इस पेन के लिए मैं यूज करती हूँ ये महंगे हो गए हैं. So that is another reason. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बलून्स महंगे हुए हैं because इसमें जो गैस फिल करते हैं हीलियम गैस वो महंगा हो गया. So that is another reason when the production के cost ये increase होते हैं. And the third reason is when there's a built-in, यानी कि जब wages इंक्रीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि यस द कॉस्ट ऑफ दीज पेन्स विल आल्सो इंक्रीज. सो दीज आर द रीजंस व्हाई इन्फ्लेशन अकर्स. ना इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम यूजुअली दो इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं. सो विच आर दीज टू इंडेक्स? फर्स्ट इंडेक्स इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको हम कहते हैं WPI. And the second index is the consumer price index, which is the CPI. Wholesale, we are measuring जो price changes at the wholesale level, okay, before it comes to the main market, right? Wholesale level पे. Secondly, CPI हम यूज करते हैं retail level पे या जो consumer को जो मिलता है उस level पे जब हम price check करते हैं या measure करते हैं ये हम बोलते हैं CPI. Okay? Now, कौन ये पब्लिश करता है? दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज पब्लिश करती है. So in case of CPI, it is mainly CPI is done by the National Statistical Office, that is NSO, Ministry of Statistics Program Implementation. Whereas WPI is by the Office of Economic Advisor, who is under the Ministry of Commerce and Industry. This is very important. Many students get confused with this. Okay? तो यहाँ पे with regard to manufacturing और सब देखते हैं या commerce industry business level पे. So we have Ministry of Commerce and Industry. Whereas this one is so National Statistical Office. Whereas गिनती करने के लिए Ministry of Statistics and Program Implementation is the responsible one.
बेस ईयर क्या है, मतलब अगर हमको काउंट करना है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है या कम हुआ है फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस पॉइंट, उस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं बेस ईयर. सो यहाँ पे हम देखते हैं इट्स 2011-12 फॉर द WPI एंड इट इज 2012 फॉर द CPI. ओके, नाउ ये रिसेंटली चेंज होगा. ये पैनल बनाई थी रमेश चंद पैनल, ही इज अ मेंबर ऑफ द नीति आयोग. ये हमने आई थिंक कुछ महीने पहले किया था, राइट. सो वी अंडरस्टैंड दैट ये अभी चेंज होगा. इट विल प्रोबेबली बी समवेयर बिटवीन 22-23 आफ्टर यू नो एनी लाइक बेस ईयर. ऐसे होते हैं जो एक sudden year नहीं होता. For example, it's not a year of COVID, lockdown. जैसे there is not much activity, a strange reason. तो ये जो normal year होता है उसको select करते हैं as a base year. So that is now they are taking a new base year soon. Coming to understand, क्या ये measure करता है, ये inflation check करता है at a producer's level before it leaves the market, right? And यहाँ पे हम देखते हैं it is mainly at the consumer or the household level पे जितना मैं inflation face करती हूँ वो मुझे CPI में मिलता है. Further, what are the commodities that are covered? This is only goods that we see. And what do you mean by goods? यहाँ पे जैसे कि articles, fuel, okay, as well as manufactured goods. तो crude oil की बात करेंगे यहाँ पे आएगा. Okay, so this is with regard to goods, but CPI में goods और services include होते हैं. Now this is also a very important thing that you have to remember. तो इसमें food, housing, electricity, health, ये सब services and articles दोनों हम पे check करते हैं. Further, as we saw, services are not included in WPI, but services are included in CPI, right? Apart from that, कब ये release किया जाता है? So this is released every month and even for CPI. So one release is on 12th and one release is on 14th. Now हर month का data है, इसीलिए we are not going to be doing the data year कि कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, कितना प्रतिशत. Not important for the exam, but you need to know these basic facts. Clear? Now who is it used by? ये WPI जो है सिर्फ goods के लिए देता है, तो कौन use करता है? It is mainly the business people, right? तो business या even in government with regard to policy decisions, because I told you crude oil का यहाँ पे होता है. So गवर्नमेंट को भी अगर पॉलिसीज बनाता है दे विल यूज दिस. बट RBI जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट कट्स और सब डिस्क्लोज करती है तभी वो CPI का इस्तेमाल करती है. सो RBI विल यूज CPI फॉर इन्फ्लेशन और फॉर चेंजिंग द रेपो रेट्स एंड एवरीथिंग, बट whereas government and businessmen will be using the WPI. So I hope these two reasons or these two indices are very clear and ये important table है, so please note it down. Further, let's now do the next article. अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज विद रिगार्ड टू इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में. नाउ वी हैव सीन दैट हमारे जो फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जो है S जयशंकर, ही वाज इन बीजिंग रिसेंटली एंड ही मेट विद हिज काउंटरपार्ट यानी कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो है यांगी. Okay, so that is the meeting. Now हम देखते हैं कि this meeting has happened after a very long time. There is a first meeting since 2019. क्या हुआ था 2019 में? Here we had seen the Galwan clash. So Galwan clash we know कि दोनों साइड के जो मिलिट्री है इनका स्टैंड ऑफ हो गया था लद्दाख के साइड में. Okay, we know Ladakh mein there are a lot of disputed regions. Okay, there is something called as Demchok and Demsak. These are the regions जहाँ पे there is crisis, there is conflict between the two countries here. Yeah? तो यहाँ पे हमारे जो foreign affairs minister हैं ये कहते हैं कि we have अभी तो हमने disengagement कर दिया है but यहाँ पे de-escalation करना बाकी है. Now what are these two words? Remember, disengagement. Disengagement का मतलब है when the two militaries
Okay, when engagement का मतलब है that two militaries are fighting against each other or they are at a direct standoff, right? But ये अभी नहीं हो रहा है. So there is no direct standoff that we are seeing. Direct यहाँ पे engagement नहीं हो रहा है. तो disengagement तो हो गया है, मतलब दोनों retreat तो कर चुके हैं, but de-escalate करना बाकी है. Okay, so direct standoff नहीं है, but यहाँ पे अभी भी forces और सब तैनात है. So that is de-escalation where we are hoping this would happen. Now coming to understand, इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से बात किया as well as उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है यान ज़ेंग. Can you tell me who is the president of China? Use the comment section to answer. Okay, so वाइस प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है. ये और इन्होंने और भी कहा है कि अभी हम ज्यादा विजिट्स इंक्रीज करेंगे. सो फॉर एग्जांपल बायलैटरल विजिट्स विल बी रिज्यूम्ड. फॉर एग्जांपल एनएसए दैट इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोवल, इनका डिप्लोमेटिक टॉक्स होगा. हमारी रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के टॉक्स होंगे, एज वेल एज फ्लाइट जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हुआ करते थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट ऑल्सो विल हैपन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. एंड वी ऑल्सो रिज्यूम द sharing of the water hydrological data. We know the rivers that flow between India and China. The most common one is the Brahmaputra river. Okay, this is the most important one. जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बट चाइना में और तिब्बत में इसको हम बोलते हैं यारलुंग सैंगबो. सो हम देखते हैं यारलुंग सैंगबो या हमारे लिए ब्रह्मपुत्र, इट फ्लोज फ्रॉम देयर रीजन, राइट. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी विल नाउ, चाइना विल रिज्यूम द वाटर शेयरिंग डेटा. पानी का जो डेटा है, फ्लो है, ये हमको रेगुलर इंटीमेट करेगा ताकि हमारे रीजन में फ्लड्स और सब ना हो, राइट. सो ये तो हमने देखा विद रिगार्ड टू इंडिया चाइना. बट नाउ लेट अस सी द बॉर्डर डिस्प्यूट्स दैट इंडिया एंड चाइना हैव. सो यहाँ पे मैप है विद रिगार्ड टू इंडिया एंड चाइना. लेट्स क्विकली सी. सो this is a long border that we see, about 3,488 किलोमीटर. Now ये जो border हम देखते हैं, ये 3 parts में divide करते हैं. First is the eastern part, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश के साइड में, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. Second is the middle part, which is in Himachal and Uttarakhand. Now this is more of a undisputed region. Okay, the third region is the Ladakh region. So this is the western part. Okay, so the Ladakh region that is there. तो ये हम देखते हैं, these are the 3 parts. Now this is the LAC that we talk about, which is the demarcation that separates India and China border. India controlled territory from the China controlled territory. यहाँ पे हम लाइन भी कहते हैं, called as the McMahon line in the Arunachal Pradesh side. What is that called? McMahon line. Now remember this McMahon line, चाइना नहीं मानता बट इंडिया मानता है. इन बिकॉज चाइना मानता है अरुणाचल प्रदेश उनका ही है. सो इंडिया बिलीव्स इन द मैकमोहन लाइन विच वाज ड्रॉन बाय द ब्रिटिशर्स, राइट. सो दिस इज द अरुणाचल प्रदेश के साइड में ये लाइन है. सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश का होता है विद द चाइनीज रीजन. इज दैट क्लियर? सो LAC जो है हम देखते हैं कि 3,488 द पूरा LAC, बट चाइना कंसिडर करता है 2,000 किलोमीटर ही, बिकॉज वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है. सो दिस हैज बीन द क्लैशेस, बट वी कंसिडर ऑफ कोर्स द रीजन्स गिवन इन द LAC दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर रीजन. So now let's proceed to the next article. कुछ नए गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं in हरियाणा, गोवा एंड लद्दाख. Okay, so लद्दाख में it is the लेफ्टिनेंट गवर्नर that we talk about. Now ये जो टर्म्स है लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और जस्ट अ गवर्नर, what does this mean? Governor is for every state of India. Okay, तो अगर मैं सिर्फ गवर्नर की बात करूं, those are generally for the states. Okay, so every state has one governor. Of course, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में बोला था कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, बट अमेंडमेंट के थ्रू अराउंड 7th अमेंडमेंट आया था, उसमें बोला था कि 2 स्टेट के पास एक गवर्नर हो सकता है. तो ये गवर्नर के बारे में. अगर हम बोलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, दीज आर मेनली सम यूनियन टेरिटरीज दैट हैव इट. Okay, and which are the union territories that have it? We have Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Puducherry, Jammu Kashmir and Delhi. तो इसमें we have the lieutenant governors.
एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स कुछ और रीजन्स में है, जैसे कि चंडीगढ़, अभी ये तो एक ही बना है, दैट्स दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एंड लक्षद्वीप में। Okay, so this is how it is divided and you need to know which comes under lieutenant governor, which comes under an administrator. यहाँ पे याद रखना चंडीगढ़ जो है इनका administrator is nothing but the governor of Punjab. Okay, तो governor of Punjab is the administrator also of चंडीगढ़. Okay, तो अभी हम देखते हैं कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटमेंट एंड व्हाट आर द रोल्स, व्हाट आर द पावर्स दैट दे हैव। सो यहाँ पे बस नाम देखते हैं, दिस इज कविंद्र गुप्ता, अश्विन कुमार घोष एंड पशुपति अशोक गजापति राजू। ओके, तो ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, दिस इज हरियाणा एंड दिस वन इज ऑफ गोवा। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड गवर्नर को कैसे अपॉइंट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द president. Okay, so we see that the qualification क्या होना चाहिए if you want to be a governor. You have to be an Indian citizen. Okay, secondly आपको at least 35 years age होना चाहिए. Third, you cannot be a member of the parliament या a state legislature. तो किसी MLA या MP नहीं हो सकते आप. Next, यू कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे किसी भी दूसरे जगह पे आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो अलाउड नहीं है, बिकॉज देन यू विल बी मोर बायस, राइट। तो ये सब भी अलाउड नहीं है। जब तुम अपॉइंट होते हो देन व्हाट एग्जैक्टली और वेयर डू यू गिव योर ओथ, ठीक है, यू गिव योर ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑफिस आपको ओथ लेना पड़ता है और वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उस स्टेट का होता है। अगर वो नहीं होते तो कोई सीनियर ऑफिसर या सीनियर जज के सामने हो सकता है। फर्दर, व्हाट इज द टर्म ऑफ द गवर्नर? Now governor is, we can say, the head of the, you know, in terms of the state, ठीक है, स्टेट के जो हेड हैं। तो यहाँ पे इज मोर ऑफ अ नॉमिनल हेड। ओके, ये कोई अपॉइंटमेंट इलेक्शंस के साथ नहीं होता, ये बस अपॉइंट नॉमिनेट करके सिलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज डन बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट खुद के मनमर्जी से तो नहीं कहता, बट प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इज दैट क्लियर? तो गवर्नर यहाँ पे ऑफिस होल्ड करता है एट द प्रेसिडेंट्स प्लेजर एंड टिपिकली ये 5 साल का होता है, बट 5 साल से कम भी हो सकता है, 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। सो इट वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। So there is no fixed term as such, but it works on the president's pleasure. तो अगर गवर्नर को रिजाइन भी करना है तो वो भी वो प्रेसिडेंट को ही देता है। तो प्रेसिडेंट निकाल सकता है, अपॉइंट कर सकता है एंड सो ऑन। Okay, so this is with regard to the governor and he works because governors में already चुने हुए representatives है। We know there is chief minister, the council of ministers, MLAs होते हैं, right? तो हम देखते हैं कि already ये लोगों ने चुने हुए हैं, तो इन governors का रोल थोड़ा कम है। गवर्नर्स का रोल कम है। Why so? Because they are mainly just nominal heads. They are not elected by the people. Now coming to understand what is the power of the lieutenant governor? Lieutenant governor की बात करें तो हम देखते हैं कि these again are appointed by the president itself. ठीक है? Now many states like Delhi, some UTs, कौन से UTs हैं? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, इन तीनों में यू ऑल्सो हैव द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। स्टेट्स इन तीन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिकॉज वी नो दैट यहाँ पे भी इलेक्शंस और सब होते हैं, राइट। सो इसमें हम देखते हैं कि इस यूटीज में जो गवर्नर होता है इनको हम LG कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। And of course, 2 other regions, that is Andaman and Nicobar and Ladakh also, we've got the lieutenant governor, rather than we don't call him an administrator. Now, lieutenant governor का part, his power is to be a head of the union territory, a constitutional head. Okay, कुछ यहाँ पे subjects दिल्ली के केस में, बिकॉज वो एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इंपॉर्टेंट रीजन है, तो कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे रिजर्व्ड हैं ओनली फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर, विच आर दे द 3 things: public order, police
एंड लैंड, ये इसके अथॉरिटी में नहीं, यानी कि स्टेट की अथॉरिटी में नहीं है, दिल्ली के सीएम के पास नहीं है, किसके पास है, एलजी के पास। फर्दर प्रेसिडेंट की तरह ये भी आदेश दे सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस दे सकते हैं, बिल रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट। ये अपॉइंट करते हैं सीएम एंड द मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होता है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ओके, तो ये एक मिडिलमैन होता है बिटवीन द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन and between the central government. So this is how they are like a fit. Okay, further they can recommend the president's rule उस union territory के लिए, like for example जम्मू कश्मीर है या दिल्ली है, वहाँ पे president's rule लगा सकते हैं because of the advice or the recommendation of the lieutenant governor. Compliance ensure करना चाहिए उनको with regard to the union territories administration. वो nominate भी कर सकते हैं certain bodies without the ministerial advice, and that is specifically for Delhi, okay, because it is a very important national capital region. तो हमने ये देखा है with regard to governor and the role of lieutenant governor in the country. Let's now proceed to the next. Okay, before we proceed, एक बार difference भी देखते हैं जल्दी से. Okay, as I said, governor is for states. What are lieutenant governors for? For UTs. Okay, UTs. Further, they have authority over states with more autonomy. Okay, because ये bill will pass करते हैं, असेंट देते हैं, ये भी देखते हैं, बट यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटीज देखते हैं, दे आर मोर अंडर सेंट्रल कंट्रोल. आपने देखा ही है, रिजर्व सम सब्जेक्ट्स आर रिजर्व बाय देम. फॉर एग्जांपल we talk about public law and order, public order, और हम देखते हैं police, right? So all of them are coming under with the lieutenant governor. They have more ceremonial roles, जैसे कि chancellor of the university, state university, ये सब भी roles है उनके पास. Along with that, lieutenant governor, as we said, दिल्ली के केस में they have an active role, but not with the case of the other governors in that matter. They are mostly working on the advice of cabinet. Okay, तो जो भी उनके स्टेट के कैबिनेट्स कहता है वैसे इनको परफॉर्म करना चाहिए, बट यहाँ पे उनके ज्यादा एक्सटेंसिव डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, बिकॉज दे आर उनके कोई यहाँ पे इलेक्टेड नॉमिनेशंस नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट लाइक अंडमान एंड निकोबार फॉर दैट मैटर, राइट? सो इसमें they have more extensive discretionary powers. Further, इनके articles क्या हैं? Article 153 to 162, and यहाँ पे the article is 239 to article 239 AA. So this is just the articles that are between governor and the lieutenant governor. Proceeding to the next article, which is अभी attendance लगेगा for the लोक सभा के members. पहले attendance भी लगता था, but पहले attendance कैसा होता था? अटेंडेंस में रजिस्टर में साइन करना, तो लॉबी में एक रजिस्टर होता था, आप साइन करो और जाओ. पर क्या होता था, बहुत भीड़ होती थी तो कुछ लोग साइन नहीं करते थे, ऐसे जाते थे, यू नो, ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू हैपन. नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव मेड इट डिजिटाइज्ड. हाउ दे हैव डिजिटाइज्ड इट? जहां पे वो सीटेड है, ओके, जहां पे वो बैठे हैं वहीं पे उनको बस लॉग इन करना है. देयर विल बी लाइक अ टैब, लॉग इन करो. आप लॉग इन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर आईडी. आपके पास एक आईडी होता है, या आपके पास थंब इम्प्रेशन, जैसे यू नो यू हैव अ बायोमेट्रिक, अदरवाइज यू हैव अ पिन. ओके, जैसे आप मोबाइल फोन्स ऑपरेट करते हैं बस वैसा ही है. तो ये करके आप अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं. ओके, सो ये जो MMD टर्मिनल्स है, व्हाट इज MMD? दैट्स मल्टीमीडिया डिवाइस. तो ये जो आप डिवाइस है, अर्लियर डिवाइस होता था, बट वो सब एजेंडा क्या है इस आज के मीटिंग का, आज के सिटिंग का, यू नो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर टॉक्ड अबाउट, ये सब एक्सेस करने होता था. अटेंडेंस के लिए नहीं था वो, बट नाउ दैट अटेंडेंस का एक फीचर भी ऐड किया गया है. क्लियर? So this is also going to have a digital pen or tablet option and all. Now there is one can say एस्पेक्ट कि ये जो है मंत्रियों के लिए, सो विद रिगार्ड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनके लिए ये प्रोसेस नहीं होगा. ओके, उनका अटेंडेंस ऐसे ही मार्क करेंगे. ये बाकी लोगों को अटेंडेंस उनका मार्क करना पड़ेगा. ओके, सो उनको कुछ ज्यादा प्रिविलेजेस हम देते हैं. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर MMD terminals and attendance via this particular aspect? It is because it will save time. Okay, crowding नहीं होगा लॉबी, ऐसे साइन करने के लिए, यू नो, भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा. सेकेंड थिंग,
It will discourage MPs from marking attendance and leaving without attending proceedings. तो क्या करते थे लोग, साइन करते थे और चले जाते थे. तो यहाँ पे you have to come inside, okay, you have to attend and then you scan and then you can of course, okay, so that is what it will help. Transparency होगा, पता चलेगा ना आपके जो मंत्री आपने जो इलेक्ट किया है क्या वो अटेंड भी कर रहा है पार्लियामेंट्री सिटिंग्स. इससे प्रॉपर हम उसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो दैट इज द पॉजिटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरी गुड इनिशिएटिव आई मस्ट से. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है freedom of speech से related. Okay, so now this was a influencer. So what her name is Sharmasti Panoli. Okay, so what she had done is उसने सभी जो सेलिब्रिटीज है उसको उनको बैकलैश किया था कि तुम यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट कैसे कर सकते हो. दैट इज व्हाट शी सेड. ओके, सेइंग दैट कि ऑन फॉर व्हाट बेसिस हैव वी एम्ड और टारगेटेड पाकिस्तान एंड ये वो करके उसने बहुत यहाँ पे किया था. तो यहाँ पे एक दूसरे इंसान ने, वजारत खान करके नाम था उनका, उन्होंने इन पे FIR दर्ज किया था एंड दैट वाज द केस दैट वाज ऑल अबाउट. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो है BV Nagarratna and KV Vishwanathan. We remember that BV Nagarratna, she'll probably be the next only, like, you know, the first female CJI in 2027. ठीक है, तो ये आप नाम याद रखना, BV Nagarratna and KV Vishwanathan. तो इन्होंने बोला कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये हमको वाइजली एक्सरसाइज करना चाहिए. फर्दर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है. ऐसे ही आप नो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, जो मन में आया कह सकते हो ऐसा नहीं है, राइट. एंड स्पेशली सोशल मीडिया में इसका गलत इस्तेमाल बहुत होता है. सो दैट इज व्हाट दे हैव सेड एंड दे सेड कि गाइडलाइंस होना चाहिए एज टू व्हाट कैन बी अलाउड एंड व्हाट कैन नॉट बी अलाउड. तो ये सब उन्होंने कहा है विद रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और केस अभी भी चल रहा है. सो द केस इज नॉट कंप्लीट बट वी विल सी देयर आर सच जजमेंट्स दैट डू कम इनटू प्लेस. हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A. नाउ व्हाट दे से इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जो भी हम फैक्टर्स हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच, freedom, the right to broadcast, the right to information RTI, right to criticize others, right to expression beyond the national boundaries, so not within the state but even outside events के बारे में, right not to speak or right to remain silent is also a part of your freedom of speech and expression. But as I said, this is not absolute. इसके restrictions क्या हैं? Sovereignty and integrity of India. अगर वो affect करते हैं तो इनके interest के खिलाफ है, then your right can be taken away from you. You can be arrested. You can be imposed a fine on. Right? Further, security of the state. Friendly relations with other foreign countries. अगर ये इसको affect कर रहा है, public order, decency and morality, contempt of court. किसी को तुम डिफेम कर रहे हो, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, यानी हेट स्पीच एंड ऑल ऑफ दैट, किसी रिलीजन के खिलाफ तुम बात कर रहे हो. सो ऑल ऑफ दिस कैन लीड टू पनिशमेंट. तो यहाँ पे गाइडलाइंस होने चाहिए स्पेशली टू रेगुलेट अब्यूसिव कंटेंट, क्योंकि उन्होंने गाली वाली दी थी यही जो इन्फ्लुएंसर है, इसीलिए ये न्यूज में है. Let's now proceed to the next article. The next article is with regard to डेनमार्क ने यहाँ पे प्रपोज किया है to use the copyright law to protect against deep fakes. So firstly you need to understand what is the meaning of deep fakes. Deep fakes ऐसा कुछ मटेरियल है, एक सिंथेटिक मटेरियल, मतलब कोई किसी का फेस लेके किसी और पे यूज करना. तो तुम यहाँ पे ऑल्टरेशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो जैसे अमिताभ बच्चन की वॉइस यहाँ पे यूज की है फॉर एन एजेंसी टू दिखाने के लिए कि उन्होंने ही किया है. सो यू यूजिंग समबडीज ऑडियो, यू यूजिंग समबडीज वीडियो, यू यूजिंग समबडीज फेस, ऑल्टरिंग दैट मटीरियल. ओके, और एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है. दैट इज अ डीप फेक. तो यहाँ पे डेनमार्क कहता है कि यहाँ पे कॉपीराइट लॉज होने चाहिए ताकि डीप फेक्स के अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन करें. फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे यू कैन नॉट यूज समबडीज फेस और यू कैन यूज समबडीज वॉइस, इस पे कॉपीराइट होना चाहिए, ताकि डीप फेक्स जो है यू नो पीपल आर नॉट यू कैन से विक्टिम्स ऑफ डीप फेक्स. दैट इज व्हाट डेनमार्क इज डूइंग. तो डेनमार्क के बारे में क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिस देखते हैं इस बिल के बारे में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. वो कहते हैं कि कॉपीराइट प्रोटेक्शंस होने चाहिए फॉर होम, लोगों के फेशियल फीचर्स, वॉइस, अपीयरेंस, एंड स्पेशली एक्टर्स आर मोर प्रोन टू दिस पर्टिकुलर केस. ओके, आम जनता का इतना ज्यादा होता नहीं है, बट मेनली सेलिब्रिटीज एंड ऑल हैव फेस दिस मोर. सो इसीलिए देयर वाज अ केस विद रिगार्ड टू अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, रजनीकांत, राइट. तो इनके यहाँ पे फेस, इनका यहाँ पे वॉइस, इसको चेंज करके दे हैड एंडोर्स्ड प्रोडक्ट्स विच इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे हमको लगता है कि अमिताभ बच्चन एक्चुअली ये प्रोडक्ट यूज करता है, राइट. तो ये जो है इसको कॉपीराइट होना चाहिए, वॉइस को कॉपीराइट देना चाहिए, उनके फेशियल फीचर्स, उनकी पर्सनैलिटी, इनको कॉपीराइट होना चाहिए ताकि हम इसके शिकार ना हो. सेकेंड, ये इलीगल होगा टू शेयर अ डीप फेक कंटेंट ऑफ समवन विदाउट देयर कंसेंट. अगर आपने यूज किया तो ये इलीगल है, स्पेशली उनके कंसेंट के खिलाफ. ओके, इट डजंट मैटर कि ये हार्म क्रिएट कर रहा है कि नहीं, लॉस क्रिएट कर रहा है कि नहीं, आपने किसी का यूज किया है वॉइस, फेस, देन यू कैन बी पनिश्ड. allows individual to demand take down and seek compensation. अगर मान लो किसी ने यूज भी किया, I will have that take it down, I will have that receiving, I will receive compensation also for it. And अगर मैंने एक बार कंसेंट दे दिया तो मैं वापस भी ले सकती हूँ ये कंसेंट, ठीक है. So this is a traditional how copyright protection also works. Further, section 73A, of course we don't need to remember the section, but ये कहता है you can't, it bans the sharing of the realistic deepfakes for up to 50 years after a person's death. तो कोई मरा है उसका deepfake भी नहीं यूज कर सकती हूँ. 50 साल का एक यहाँ पे टाइमलाइन भी दिया है. After 50 years maybe you can. Okay. Now, the 3 protections that are introduced under this bill. Firstly, तुम मिमिक्री नहीं कर सकते, इमिटेशन प्रोटेक्शन. ओके, सो अगेन प्रिवेंटिंग शेयरिंग रियलिस्टिक डिजिटल क्रिएशन, तुमने बस मिमिक किया है वो अलाउड नहीं है. सेकेंड, परफॉर्मेंस प्रोटेक्शन, कोई म्यूजिक है, डांस है, तो उस प्ले का, उस डांस का, उस एक्ट का यहाँ पे तुम कॉपीराइट मिल सकता है. यू कांट अगेन डीप फेक इट. थर्ड वन, उस आर्टिस्ट ने जो परफॉर्म किया है, ओके, कोई एक्टर है तो उसका भी यहाँ पे सेफगार्ड किया जाता है. सो यू कांट रिक्रिएट द सेम थिंग यूजिंग डिजिटल या यूजिंग AI. तो ये हम देख रहे हैं डेनमार्क के बिल के अंडर. Okay, other things that are also mentioned, we'll just have a read through. Consent based system, as I said कि तुम उसके शेयर कर सकते हो लेकिन तुमको कंसेंट लेना पड़ेगा ऑफ द पर्सन, एक्सप्लिसिट परमिशन चाहिए. Okay, और अगर मान लो somebody catches you and says that okay you have taken a deep fake, burden of proof आप पे होगा, not कि consent किसने दिया है. आपको दिखाना होगा कि मुझे consent मिला इसीलिए मैंने ये deep fake create किया है. So the burden of proof is on the sharer, किसने इस कंटेंट को शेयर किया. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं, ओके विल डिस्कस द क्रिटिसिज्म लेटर, बट यहाँ पे इट लुक्स, इवन इफ इट लुक्स रियल एंड कॉजेस कंफ्यूजन, so even if it's not deep fake but ये real जैसा लग रहा है, okay, then also you can take that down to protect the rights of the individual. And the fourth one, stylized और obviously fake content, जैसे कि आप parody करते हो या किसी का मजाक उड़ाते हो. You must have seen, you know, in the social media where they copy somebody's accent or doing that. Okay, ये digital का इस्तेमाल नहीं किया है, but तुमने बस उसका मजाक उड़ाया है या एक सटायर क्रिएट किया है, वो इसमें एक्सक्लूड है बिकॉज यहाँ पे तुम डिजिटल या AI का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. सो दैट इज द केस. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द ऑब्लिगेशन? जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है लाइक इंस्टाग्राम और X की बात करें, सो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग डीपफेक. अगर उनको पता चला कि AI के इस्तेमाल से ये किया गया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक दैट डाउन एंड पेनाल्टीज विल बी इम्पोज्ड अगर तुमने निकाला नहीं. ओके, सो हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे केसेस भी, जैसे हमने कहा अनिल कपूर की पर्सनैलिटी राइट्स, उनका जो अंदाज है, यू कांट टेक दैट. इफ यू टेक देन यू हैव टू, यू विल बी स्यूड. ओके, इवन द सेम फॉर अमिताभ बच्चन, उनका जो बैरिटोन है, उनका जो वॉइस है, इसका इस्तेमाल किया था बहुत सारे यू नो एंडोर्स करने के लिए प्रोडक्ट्स. सो दैट अगेन इज रॉन्ग, स्पेशली यूजिंग डिजिटल मीडिया और यूजिंग AI फॉर दैट इज ऑल्सो दैट वी सी इज रॉन्ग. यहाँ पे एज आई सेड देयर इज वन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस बिल, इवन दो इट इज ओवर
encompassing सब कुछ लेता है copyrights में, performance, performing artist के बारे में. But if you see, deepfake बनाना is not a crime, but deepfake share करना is a crime according to this law. Is that clear? So deepfake अगर बना रहे हो प्रॉब्लम नहीं है, but share करोगे तो पकड़े जाओगे. This is what the bill is actually saying. So that is a criticism of this particular bill. Proceeding to the next article then. अगला आर्टिकल है कि ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है Maitri Grants. Okay, now what is Maitri Grants? Let's understand. So Maitri Grants, it's a fellowship, it's a scholarship that is given by the Center for Australia-India Relations. हम अपने relations better करना चाहते हैं, and that is why we create this particular, we have created this center and we give these grants. यहाँ पे आपको आंसर करना है who is the current Prime Minister of Australia. Okay, so who is the current PM of Australia? ये आपको बताना है in the comment section. Further, it aims to deepen people-to-people connections, foster bilateral relations between India and Australia. Okay. Further, हम देखते हैं कौन से सेक्टर्स में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं. इनोवेशन, एंटरप्राइज, एजुकेशन एंड कल्चर. So these are some key factors that we are, or key sectors that we are contributing or we are giving grants. हम स्कॉलरशिप या फेलोशिप देते हैं. फर्दर अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख रहे हैं एक इंस्टीट्यूट है एशियन थिंक टैंक जिसका नाम है लोई इंस्टीट्यूट. ओके, नाउ लोई इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू रिक्रूट अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर. एक स्कॉलर होगा एज अ इंडिया चेयर. नाउ हाउ विल दैट बी बेनिफिशियल टू अस? इससे क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू इंश्योर वर्ल्ड क्लास रिसर्च ऑन इंडियाज रोल इन इंडो पैसिफिक रीजन. एक ये एस्पेक्ट है. फर्दर ऑस्ट्रेलिया के अंडरस्टैंडिंग ऑन इंडिया, इसको ये डीपन करेगा, इसको ये समझेगा. सो विद रिगार्ड टू इंडिया, सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन टर्न इनके रिलेशंस बेटर होंगे with having an India chair as in the Lowy think tank or the Lowy Institute. तो ये था Maitri Grants and यहाँ पे we've seen India-Australia relations. Further, let's now proceed to the last article, which is 18 दिन के बाद हमारे जो इंडिया से गए एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ये अभी पहुंचेंगे. राइट, सो इट इज गोइंग टू बी एट 3 PM टुडे इज वेयर ही इज गोइंग टू ड्रॉप इन ऑफ द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया. ठीक है, ये पैराशूट से स्लोली अबाउट 20 km/h के स्पीड पे ये नीचे आएंगे इन द वाटर के पैराशूट की मदद से. सो जस्ट अ लिटिल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हाट ही हैज डन इन द ISS, ये सब हम करेंगे. सो फर्स्टली हु आर द मेंबर्स दैट वर देयर एज पार्ट ऑफ द एक्सियोम मिशन. ये एक्सियोम 4 है. राइट, सो दिस इज ग्रुप कैप्टन था शुभांशु शुक्ला जो पायलट थे. कमांडर, द मेन कमांडर वाज पेगी विटसन जो USA की थी. फर्दर मिशन के दूसरे स्पेशलिस्ट थे स्लावोज युजनांस्की एंड तिबोर कापो. सो वन वाज फ्रॉम पोलैंड एंड हंगरी, और इन्होंने भी पहली बार इसका पार्ट लिया है, लाइक द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ दिस मिशन फॉर द फर्स्ट टाइम. So it is said that they had about 433 hours in space, that is 18 days. कितने बार उनके ISS ने ऑर्बिट किया? 288 times and 7.6 million miles पे इन्होंने ट्रैवल कर दिया. So all of this is with regard to this particular mission. Now, what are the experiments performed by him? ये भी हमको जानना है. So let's quickly do that as well. So the crop seed on ISS, International Space Station. We'll be seeing about ISS also, but let's see what are the crops that were taken in ISS. So ISS firstly it was led by which agency? That is the Indian Institute of Space and Technology. तो ये space technology which is in Kerala, इनका ये experiment था जो शुभांशु शुक्ला ने perform किया. They wanted to measure how microgravity will affect the plant growth. जैसे microgravity जैसी conditions है space में वो कैसे affect करेंगे seeds को, ये उनका objective था. तो कौन से seeds को लेके गए थे? We have Jyoti and Uma, which is rice variant. Horse gram है, that is Kanakamini. Tomato, which was the variant is Velaini Vijay. Sesame or sesame, that is Tilak Katara, and the brinjal or the eggplant, which is Surya.
ठीक है. So these are the seeds that are included. You need to know these names. Okay. तो ये अभी seeds लेके गए थे, अभी यही seeds वापस लेके आएंगे और ये compare करेंगे कैसे ये affect हुए थे. And this is going to be done with the partnership of the Kerala Agriculture University. Now let's understand about the ISS, which is the International Space Station. International Space Station जहाँ पे वो गए थे. ओके, सो दे वेंट फ्रॉम थ्रू द एक्सियो मिशन. एक्सियो मिशन का मकसद यही है, इट्स अ प्राइवेट स्पेस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. बट रिमेंबर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज अ कोलैबोरेशन ऑफ यूएसए, रशिया, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दैट्स यूरोपियन यूनियन, एज वेल एज कैनेडा. तो ना इंडिया इसका पार्ट है, ना कैनेडा इसका पार्ट है. इट इज ओनली दीज एजेंसीज दैट आर पार्ट ऑफ इट. Okay, now this is flying in the low Earth orbit, जो है 400 किलोमीटर from the Earth surface. Okay, 400 kilometers from the Earth surface. इसका स्पीड बहुत ही हाई है. It is about 28,000 किलोमीटर पर आवर. ओके, और ये इतना तेजी से घूमता है, which is why ये एक दिन में, okay, it has about 15.6 रेवोल्यूशंस, 15.6 रेवोल्यूशंस करता है. तो 15 से 16 टाइम ये मूव होता है, बिकॉज ये इतना तेज भी है. ओके, तो हर एक रेवोल्यूशन कितना समय लगता है? इट टेक्स अबाउट 90 मिनट्स. ओके, 1.5 आवर में उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है. एंड दैट्स हाउ इट इज एबल टू डू अबाउट 15.6 रेवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ. तो ये एक लेबोरेटरी है, ऐसे समझो लेबोरेटरी है स्पेस में, जहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए. और यहाँ पे हमारे शुभांशु शुक्ला गए थे अंडर द एक्सियो मिशन. एक्सियो मिशन जो हुआ था, इट वेंट अप फ्रॉम द नासा का स्पेस कैनेडी सेंटर. ओके, नासा का कैनेडी सेंटर. एंड वेयर इज द कैनेडी सेंटर? इट इज इन फ्लोरिडा. फ्लोरिडा में ये ऊपर टेक ऑफ किया था. एंड यहाँ पे जो उन्होंने चलाया था, जो ही वाज अ पायलट ऑफ द स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन. Okay, so this was the spacecraft that helped him dock towards the ISS. तो ISS पे चिपक के फिर वो astronauts चले गए ISS के अंदर. So this is the important facts that you need to know with regard to the Axiom mission, and after 18 days they have finally come home. So that is all with regard to today's daily news analysis. We've seen very interesting current affairs and news articles. Don't forget to watch the next video where I'll be discussing about the 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.